Hello students, my name is Smita Zambre and today we are going to start our 11th lesson from science textbook Light, Shadows and Reflections. In this lesson, we are going to learn the following points: light, shadows, a pinhole camera and the mirrors and reflections. So students, now let's move towards the first point of this lesson, light. Now let's get the information about the light. Students, we see so many things around us and the things they are of the different colors, shapes and sizes. तो ये सारी चीजें देखने के लिए we need light and without light we cannot see the actual color or the shape of any object. So, depending upon the sources of light, we can categorize light into two groups. First one is the natural light and second one is the artificial light. For example, students, as we know that the sun is the ultimate source of energy and light. So, stars and sun, we can say that these are the natural sources of light. And then what are the artificial sources of light? Like tube light, bulb, candles. These are the artificial sources of light. So the natural source of light, as we know, that is the sun, and that sun is called as the luminous body. What is the meaning of luminous? Luminous means the body which emits its own light, मतलब जिसका खुद का अपना लाइट होता है and that gives light to the others. जैसे कि sun जो है star है and it emits its own light. But what about the moon? Moon is not the luminous body. तो आप कहोगे कि मिस हमें मून से भी लाइट मिलता है. Yes, obviously we get the light from the moon also, but it reflects the light which he get from the sun. जो कुछ सन से लाइट मिलता है वही लाइट वो क्या करता है, एमिट करता है. So as we know that the light falls on the different objects and it also exhibit the different characteristics. Depending upon their characteristics, they can be categorized into three categories. First one is the transparent, second one is the translucent, and the third one is the opaque objects. Now let's get the information one by one. So what are the transparent materials? Transparent materials मतलब क्या? The objects which allowed the light to pass through it fully. है ना? ऐसे materials जैसे उसके अंदर से लाइट जो है वो इजीली पास हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एयर, ग्लास और वाटर, इट अलाउज द लाइट pass through it and hence they are transparent materials. After that, some materials allow only some very small or little amount of light and hence they are called as the translucent materials. For example, we can say that the butter paper or tracing paper, these are the examples of the translucent objects. And the opaque objects means that materials do not allow light to pass through it. फॉर एग्जाम्पल वुड अगर हम देखते तो वुड के थ्रू जो है वो लाइट पास नहीं होती एंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स we get the information about the light. So we need light to see every object. Now moving towards the second point of this lesson is the shadows. Shadows means what? परछाई. So shadows कब तैयार होती है? How shadows are formed or what is mean by shadow? Shadows are formed when an opaque object is placed in the path of a light. जब भी हम लाइट के पाथ में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते, ओपेक मीन्स अभी हमने देखा कि जिससे लाइट जो है वो पास नहीं होता, तो अभी इस ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा? इट क्रिएट्स द शैडोज एंड विच कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन. और इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरता है ना, और उसके सामने अगर कोई भी स्क्रीन होती है तो एट दैट टाइम शैडोज जो है वो तैयार होती है. And a shadow gives us information about the shape of object from which it is formed. और वो शैडो जो है वो हमें पता चलता है कि वो किस चीज से बना हुआ है.
and a shadow is always dark and always found behind the opaque object. हमेशा शैडो का कलर जो है वो हमें डार्क या फिर ग्रे कलर में दिखाई देता है. अगर सपोज हमने ब्लू कलर का भी बलून हाथ में रखा है या फिर रेड कलर का भी, बट उसकी शैडो जो है वो हमें ब्लैक और ग्रे ही दिखाई देगी. A same object can make the different types of shadows depending upon the distance from the light and the direction of light falling on it. अभी सपोज एक ही चीज है बट उसकी शैडोज जो है वो हम अलग अलग तरीके से जो है वो दिखा सकते हैं. हाउ? When we change the direction of the light, also the shadow of the object change. ये एक्टिविटी जो है टेक्स्ट बुक में दी है, ये आप जो है वो खुद करके देख सकते हो. सो टू फॉर्म अ शैडो, वहाँ पर 3 कंडीशंस या फिर 3 चीजें होना बहुत जरूरी होता है. 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू फॉर्म अ शैडोज आर, सबसे पहले तो लाइट लगेगा, अ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जिसके ऊपर वो शैडो गिरने वाली है वो स्क्रीन. So and these 3 things can form a shadow. Okay, now let's get the information about the pinhole camera. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कोई भी शैडो तैयार करने के लिए जैसे हमें लाइट लगता है या फिर कोई भी चीज देखने के लिए हमें लाइट लगता है, वैसे ही अभी ये जो पिन होल कैमरा होता है, अ लाइट कैन बी प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना. जो लाइट होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, प्रोपोगेट होता है. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अ पिन होल कैमरा. और ये हम एक डिवाइस जो हम बना सकते हैं इजीली, पिन होल कैमरा, उससे हम देख सकते हैं. अ पिन होल कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स के वक्त भी जो है हम पिन होल कैमरा यूज कर सकते हैं. तो पिन होल कैमरा जो है वो किससे तैयार होता है? अ पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और अ कार्डबोर्ड बॉक्स. एक तो हम मेटल का बना सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स का. एंड इट हैज अ फाइन होल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस. और वहां पर एक छोटा सा होल होता है जो उस बॉक्स के एक तरफ होता है. बट जैसे कि हमने कहा कि पिन होल कैमरा से हम सोलर इक्लिप्स भी देख सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज वियर spectacles to see the solar eclipse because it is so much harmful for our eyes. So इस तरह से कुछ पिन होल कैमरा की एक्टिविटी भी आपके टेक्स्ट बुक में दी है, वो आप इजीली करके देख सकते हो. सो कुछ नेचुरल पिन होल कैमरास भी होते हैं, जैसे कि देखो कोई ट्री है, उस ट्री के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर से जब शैडो आती है, देयर आर सम नेचुरल पिन होल कैमरास फॉर एग्जाम्पल, है ना. जैसे कि स्मॉल पैचेस होते हैं लाइट के, है ना, उस ट्रीज के लीव्स के अंदर से आते हैं. एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू द सनलाइट फॉलिंग थ्रू द स्मॉल गैप्स इन बिटवीन द लीव्स. इस तरह से हम नेचुरल पिन होल कैमरा भी जो है वो देख सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज द मिरर एंड रिफ्लेक्शंस. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन सम ऑब्जेक्ट्स. कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरता है एंड दैट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक. जैसे कि मिरर के ऊपर अगर लाइट गिरता है तो वो क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. दिस इज बिकॉज द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी मच शाइनी. उस ऑब्जेक्ट का सरफेस क्या होता है, बहुत ज्यादा शाइनी यानी कि चमकीला होता है. एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट. और वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. Mirrors reflect almost the entire amount of light that falls on the surface. Hence, they are very good reflectors. जितना भी कांच के ऊपर, मिरर के ऊपर जो कुछ सनलाइट या फिर लाइट गिरता है, वो क्या करता है, पूरा के पूरा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बिकॉज वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. सो वी कैन से दैट मिरर्स आर द वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स. Also, mirrors can used to change the direction of light rays that falls on them. है ना. मिरर्स के ऊपर जो कोई लाइट गिरता है उससे हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि देखो आपके व्हीकल्स के ऊपर लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो हमें मिरर में दिखाई देते हैं, एक्चुअली उनका डिस्टेंस जो है वो अलग होता है. सो हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट इमेजेस एंड शैडोज आर डिफरेंट. जो कुछ हमें मिरर में दिखाई देता है ना, वो जो है डिफरेंट होते हैं, उसके इमेजेस और उसके क्या होते हैं, शैडोज. जो कुछ इसकी इंफॉर्मेशन, ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है अभी आपको इस लेसन में दी है. एज यू गो इन द हायर स्टैंडर्ड यू विल गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. Okay students, in this way we finished our 11th lesson. Read the lesson carefully and watch the video carefully. Thank you.
Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.